हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सम मोर कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री। पिछली वीडियो में हमने कुछ टॉपिक स्टडी किए थे। पिछली वीडियो में हमने जाना था पॉइंट, दिस इज़ सेगमेंट, दिस इज़ रे एंड दिस इज़ लाइन। इनके बारे में हमने पिछली वीडियो में सीखा था। आज हम पढ़ेंगे इसके आगे का टॉपिक्स। सो लेट्स जस्ट रिवाइज। दिस इज़ line L. Now x and y are the 2 points on the line. So you can read this as line xy or line yx, or simply you can read this as line L. A line is denoted by small letters. So this can be read as line M. This is line N. This is line Q. And this is line R. Now you can see this figure. अब इस फिगर में आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो चारों लाइंस है, लाइन L, लाइन M, लाइन N, लाइन Q, ओके, ये सभी जो लाइंस है वो सिर्फ ये सभी जो है एक कॉमन पॉइंट से पास हो रहे हैं. सो दीज लाइंस आर कॉल्ड एज कंकरेंट लाइंस. इससे हम कहेंगे कॉन्करेंट लाइंस. 3 or more lines which passes through the same point, such lines are called as concurrent line. When 3 or more line passes through the same point, आप देख सकते हो ये सब आपस में एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं. दिस इज पॉइंट O. So when 3 or more line passes through the same point, they are said to be concurrent lines. अब इसमें लाइन L, लाइन M, line N, line Q, all these lines, they passes through the same point, that is point O. So these lines are all concurrent lines because they all pass through the same point. And this point O, at which all the lines meet, this point O is called as point of concurrence. ये जो पॉइंट O है जहाँ पे सभी लाइंस आपस में आके एक दूसरे से टकराते हैं या मीट करते हैं, इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस. ये जो पॉइंट O है ये है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस. अब यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है. यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 4 पॉइंट्स है इस लाइन पे. इस लाइन का नाम है लाइन L और इस पे 4 पॉइंट्स है. पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C एंड पॉइंट D. When 2 or more points, if we can draw a line through these 2 or more points, a straight line can be drawn, then such points are called as collinear points. When 2 or more points lie on the same line, they are called as collinear points. अभी आप देख सकते हैं ये सभी पॉइंट्स के थ्रू एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है. सो इन पॉइंट्स को कहा जाएगा कोलिनियर पॉइंट्स. 2 or more points or 3 or more points which lie in the same line is called as collinear points. अभी आप यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट X, पॉइंट Y और पॉइंट Z, ये सभी सेम लाइन पे आ रहे हैं. इनके थ्रू हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. सो इस पॉइंट्स को हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स. When 2 or more points lie on the same line, they are called as collinear points. अभी यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इस लाइन पे है 2 पॉइंट्स. We can see 2 points on this line, point A and point B. And point C is left upward and point D is left downward. So यहाँ पे सभी points include नहीं हुए इस line में. 2 points are left. So such points are called as non-collinear points. When 2 or more points or 3 or more points do not lie on the same line, such points are called as non-collinear points. If a straight line cannot be drawn through 3 or more points, then such points are called as non-collinear points. अब यहाँ पे आप देख सकते हो पॉइंट C और पॉइंट D रह गए हैं. सिर्फ पॉइंट A B यहाँ पे लाइन पे आए हैं. So these are called as non-collinear. All these are called as non-collinear points. Now again here X, Y, Z, W, these are points X, Y, W and Z. Now all these points are non-collinear points. Why? Because here point Z is left here and point Y is left here. So a straight line cannot be drawn through all these 4 points. In this figure, a straight line can be drawn through all these 4 points, passing through all these 4 points. So when 2 or more points or 3 or more points lie in the same line, they are called as collinear points. When 3 or more points do not lie in the same line, they are called as non-collinear points. Now we have next here is
अब नाउ अभी आप देख सकते हो ये है मैंने बनाया है यहाँ पर रेक्टेंगल, ये है स्क्वायर, ये है पैरेललोग्राम एंड दिस इज रोम्बस। अभी इन सभी फिगर को आप देख सकते हो, ये जो एरो है चारों जगह पर, ये जो एरो है इसका मतलब ये है कि मैं इसको और भी इसको एक्सटेंड कर सकती हूँ, इसको भी मैं और बड़ा कर सकती हूँ, और ये जो फिगर है मैं इसको बड़ा कर सकती हूँ। सो अ फ्लैट सरफेस, एनी फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड प्लेन। इसको मैं हर जगह से एक्सटेंड कर सकती हूँ और इसको और बड़ा कर सकती हूँ, इसे भी, इसे भी, इसे भी। एनी फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड अ प्लेन। It's basically a flat surface which you extend in all direction, which you can extend. See here also you can extend this figure, I can extend this figure, even this figure can be extended, even this figure can be extended. आप इसको और बड़ा कर सकते हो. So a flat surface which extends infinitely in all direction is called as plane. Now अब नेक्स्ट हम सीखेंगे पैरेलल लाइंस. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया है, ये एक प्लेन है और इस प्लेन का नाम है एच, प्लेन एच. अब इस प्लेन में आप देख सकते हो दो लाइंस है. हियर यू कैन सी line L and here you can see line M. So two lines which lie in the plane, which lie in the same plane but do not intersect each other. अभी मैं इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूँगी, आप देख सकते हो मैंने बाहर इसको फिगर बनाया है. ये जो लाइन L है और लाइन M है, इसको हम अगर और एक्सटेंड करेंगे, इसको और लंबा खींचेंगे, और इस लाइन को भी अगर हम और लंबा खींचेंगे, ये और लंबी ऐसे चलती जाएगी, लेकिन ये आपस में एक दूसरे से टकराएंगी नहीं. ये जो होता है ना, इसे हम कहते हैं टकराना. तो ये आपस में इस तरह से टकराएगी नहीं, ये ऐसे ही और लंबी लंबी होती जाएगी. सो दीज लाइन्स आर कॉल्ड एज पैरेलल लाइन्स. क्योंकि ये सेम प्लेन में लाई करते हैं और ये आपस में टकराते नहीं हैं, तो हम इसे कहेंगे पैरेलल लाइन्स. टू लाइन्स विच लाई इन द सेम प्लेन बट डू नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर. ये आपस में एक दूसरे से नहीं टकराते हैं, तो इस तरीके की लाइन्स को हम कहेंगे पैरेलल लाइन्स. नाउ सी द एग्जाम्पल इज, अनदर एग्जाम्पल इज लाइन पी क्यू. लाइन पी एंड लाइन क्यू, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइन्स. अगेन यहाँ पे मैंने इसको एक्सटेंड करके आपको बताया. सी, इस लाइन P को अगर आप एक्सटेंड करोगे और इस लाइन Q को अगर आप एक्सटेंड करोगे, ये इसी तरीके से और आगे आगे एक्सटेंड होगी, बट ये आपस में एक दूसरे से नहीं टकराएगी. सो दीज लाइन्स आर कॉल्ड एज पैरेलल लाइन्स. हियर वन मोर एग्जाम्पल, दिस इज लाइन X एंड दिस इज लाइन Y. यू कैन एक्सटेंड दिस, दे विल नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर. सो द लाइन्स विच लाई इन द सेम प्लेन but do not intersect with each other, such lines are called as parallel lines. वो आपस में एक दूसरे से इस तरीके से नहीं टकराते हैं. So now अब हम करेंगे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल. सी हियर मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पल दिया है. नाउ दिस पॉइंट P, पॉइंट Q एंड पॉइंट R, इनके थ्रू हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. सो दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड एज कोलिनियर पॉइंट्स. नाउ दिस is a flat surface, so this is called as a plane. Now these two lines, they will, if you extend these two lines, they will not intersect with each other, so these lines are called parallel lines. Now this here we have point X, point Y and point Z. You cannot draw a straight line passing through all these points. इनके थ्रू हम straight line नहीं draw कर सकते. So these points are non-collinear points. And last, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो लाइंस है ये एक ही कॉमन पॉइंट से पास हो रहे हैं. सो दीज लाइंस, दीज आर कॉल्ड एज कॉन्करेंट लाइंस. दीज लाइन आर कॉल्ड एज कॉन्करेंट लाइंस बिकॉज ये सेम पॉइंट्स पे मीट करते हैं आपस में एक दूसरे को. सो दीज आर कॉन्करेंट लाइंस. आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.